Hello everyone, good morning to all of you. So, how's everyone doing today? Now, today's session goes as usual. Rajendra, good morning. Hello, Shubham, Anu, all those who are watching us on different channels or different sources. The video runs live on SSCTube page Facebook के SSCTube के Facebook page पे this video is running live. So those who are on any other channel, you can connect via the page. Hello Pranjal, Tribhuvan, Rubendra, Jitendra, Amit. So how's everyone doing? All good? Morning Dinesh, Gaurav, Tanu, Gopal, Balram. Well, a very good morning to all of you. And it's lovely to see all of you over here. Now, before we begin on the important part, I would like that you all share the session and like the video. Tahir, I am from the beautiful state of Rajasthan. Welcome Jitendra, Suprabhat Satish, Rajendra. Okay, so before we begin the session, it's very appreciable that you all like the session and share the video जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग connect कर सकें. And we are running live on Facebook page of SSC Tube. So किसी और page पे अगर view कर रहे हो तो you can come or redirect yourself to the Facebook page. So फिर शुरू किया जाए आज का session. Shall we begin the session? Ravi, a lot of things happen for the first time. Okay, so morning to all of you and फिर आज का session अब शुरू करते हैं. Ample time has been given for joining in. First we have the current affairs and then we have the static portion जिसके अंदर हम previous year papers के ऊपर discussion करेंगे. ठीक है, so we have people from Bihar as well. I haven't been I've never seen or been there, so I have no idea what the state and the beauty of it. Okay, so we shall begin with the first question. World Liver Day is observed on which date या when is World Liver Day observed या विश्व लिवर दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Liver Day observed? Balram, first time on the channel. Well, I hope ये last time ना हो. The first question for you, World Liver Day कब होता है? When is the World Liver Day observed? Tanu, Dinesh. चलो शुरू करो. वर्ल्ड लिवर डे से शुरू कर रहे हैं. वी आर बिगिनिंग ऑन अ स्टैटिक पार्ट. सो वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? इट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल. व्हेन इज इट ऑब्जर्व? सो अनूप, दिनेश, बलराम, त्रिभुवन हैव देयर आंसर्स. Tanu has the answer. Dinesh, okay, 20 maybe. Well, the right answer of this question is 19th of April. 19 अप्रैल को होता है World Liver Day. Now search करोगे तो confusion में जाओगे. Now sometimes if you search on Google तो World Liver Day search करोगे Hepatitis Day show होगा. There are two different things. Hepatitis Day August में होता है, Liver Day April में होता है. Which is the largest organ of human body? Second largest is liver. Human body का second largest organ liver है. Which is the largest organ of human body? Human body का largest organ कौन सा है?
Anybody on the idea? 19th April, World Liver Day. Liver is the second largest organ of human body. The largest comes as the skin of human body. Next question. Which bank has launched voice banking service on Amazon Alexa and Google Assistant for its retail banking customers? किस बैंक ने अपने खुदरा बैंकिंग ग्राहकों के लिए Amazon Alexa और Google Assistant पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? दिवेंदु, क्लास आज थोड़ा सा जल्दी शुरू हो गई, आई गेस like 5 minutes before. So we have just completed one question. That's a lovely line. Okay, so which bank has launched voice banking service on Amazon Alexa? किस बैंक ने रिटेल ग्राहकों के लिए Amazon Alexa, Google Assistant पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? अरविंद, दक्षु, प्रांजल, दिवेंदु, मनदीप, विजय, हैप्पी अरोड़ा, Balram. Okay, so we have answers for ICICI on a major side. Abhish, okay, so that is right. ICICI बैंक ने वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू करी है फॉर ऑल द रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स, जो एलेक्सा पे और असिस्टेंट दोनों पे अवेलेबल है. नाउ, National Civil Services Day is observed on which date? या when is National Civil Services Day observed? या राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ना ICICI बैंक ने एक जो चैटबॉट लॉन्च किया है उसका नाम है iPal, IPAL. तो अगर ये पूछा जाता है कि iPal चैटबॉट किसका है, तो iPal चैटबॉट जो है वो ICICI का है और वॉइस सर्विस जो है वो भी ICICI ने ही शुरू की है. वर्ल्ड सिविल सर्विसेज डे कल के करंट अफेयर्स के अंदर बताया था. कल जो करंट अफेयर्स का पोस्ट था उसके अंदर बताया ही था नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में. सो ये तो पता ही होगा. बिंदु, आदित्य, सागर, सोनी, राकेश, सोनी, प्रांजल, के विकास, सागर. We have a lot of answers. 21 and 22 के बीच में confusion. The right answer is the 21st of April. National Civil Services Day is observed on 21st of April. What is the name of the vehicle launched in Kerala for rapid testing and screening for symptoms of COVID-19? कोविड-19 के लक्षणों के तेजी से परीक्षण और जांच करने के लिए केरल में लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है? केरला ने एक व्हीकल लॉन्च करी है रैपिड टेस्टिंग. नाउ रैपिड टेस्टिंग के दौरान काफ़ी स्टेट्स में या नॉर्थ साइड में बेसिकली ये देखा गया था कि लोगों ने दे वर नॉट वेलकम. जो डॉक्टर्स थे जो टेस्टिंग के लिए जा रहे थे, दे वर नॉट वेलकम. उनके ऊपर पथराव हुआ एंड वायलेंस के रिपोर्ट्स आए हैं. इसीलिए एक व्हीकल लॉन्च करी है केरला ने जिसके अंदर डॉक्टर्स कैन ट्रैवल एंड कंडक्ट रैपिड टेस्टिंग. तो उस व्हीकल का नाम क्या है? विनोद, रवि, बलराम, Aditya, Ashish, Saurabh, Satish. Okay. Sunny, we have answers for option A and option C right now. Arvind, Pranjal, Divendu, Dinesh. Okay, so we have answer for Vajra. We have answers for Compro and Tiranga. 3 option basically are coming up. The right answer, okay, Rakshak bhi aa gaya. Well, the right answer is option D, Tiranga. तिरंगा नाम की व्हीकल लॉन्च की गई है फॉर रैपिड टेस्टिंग, जिसके अंदर 3 लोग होंगे, ड्राइवर, अ वॉलंटियर एंड अ डॉक्टर. तो वो टेस्टिंग कंटिन्यू करेंगे, दैट इज व्हीकल के अंदर से ही टेस्टिंग करेंगे. द पर्सन विल नॉट बी अलाउड इनसाइड, वो अंदर रहेंगे एंड द पर्सन देयर स्क्रीनिंग विल रिमेन आउटसाइड, जिससे कि वायलेंस की रिपोर्ट्स ना हो. नाउ तिरंगा इज एन एब्रीविएशन. तिरंगा का एक फुल फॉर्म भी है. तिरंगा सिर्फ एक नाम नहीं है, इट्स एन एब्रीविएशन. इसका एक फुल फॉर्म भी है. सो व्हाट डज तिरंगा स्टैंड फॉर? इट इज टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान. फुल फॉर्म ऑफ तिरंगा इज टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान.
Next question, which state government has launched Get Set Go app for students preparing for CET and NEET? CET और NEET की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए किस राज्य सरकार ने Get Set Go ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर तो जिन्होंने कल पोल लिया था उनको आंसर पता ही होगा. So all those who took a poll yesterday, they know the answer of this question. Rest of all, get set going on the question. Get set go app किस राज्य सरकार ने शुरू किया है for all the NEET and CET preparators? Karnataka, option D, Rakesh, Divendu, Subhajit, Gulshan, Sanjay. Okay, yes, the answer all of you are right. कर्नाटका ने ये ऐप लॉन्च किया है गेट सेट गो ऐप. जो सीईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है. वेंसडे से ये ऐप एक्टिव हुआ था जिसके अंदर ऑल द स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन्स, टेस्ट, मॉक्स ये सब अपलोड किए गए हैं. Next, which country has topped the Global Press Freedom Index 2020 या Global Press Freedom Index 2020 में किस देश ने टॉप किया है? इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक क्या थी? So what was the rank of India in Global Press Freedom Index? Which country has topped the Global Press Freedom Index and which country is the lowest ranked country in Global Press Freedom Index 2020? तीन क्वेश्चन है इसके अंदर. पहला टॉप किसने किया, दूसरा इंडिया की रैंक और तीसरा लास्ट रैंक या लोएस्ट रैंक. प्रांजल, मक्तादा, यादवेंद्र, सक्सेना जी, विकास, सोनी, बलराम, सौरभ. सेकंड रैंक 2 रैंक नीचे आ गया है नॉर्वे. ओके, इंडिया रैंक 142. प्रांजल, दैट्स राइट. सो टॉप नॉर्वे ने किया है, इंडिया का रैंक 142 हुआ है, 2 रैंक नीचे आ गया है, 140 से 142 हो गया है. द लास्ट क्वेश्चन. इसके अलावा एक और फैक्ट रिवील किया गया था कि इंडिया के अंदर नो जर्नलिस्ट वाज किल्ड इन 2019. 2019 में इंडिया में किसी जर्नलिस्ट की डेथ नहीं हुई है ड्यू टू अनसर्टेन रीजंस या वायलेंट रीजंस. थर्ड क्वेश्चन जो है, लोएस्ट रैंक दैट इज नॉर्थ कोरिया. सबसे कम फ्रीडम जो है प्रेस को वो नॉर्थ कोरिया में है. नाउ ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ओवरऑल 180 कंट्रीज को रैंक किया जाता है. तो नॉर्थ कोरिया की रैंक 180 रही, इंडिया की 142 रही और टॉप नॉर्वे ने किया है. और रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स वो रिपोर्ट देते हैं. फर्स्ट ऑडियो बुक रिलीज्ड बाय द पॉपुलर स्टोरी टेलर सुधा मूर्ति. लोकप्रिय कथाकार सुधा मूर्ति द्वारा जारी पहली ऑडियो बुक कौन सी है? Amit has the name of top 3, Norway, Finland and Denmark. It's China 177, that too was right. Now ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, मतलब ऐसे भी आ सकता है कि आपको बुक का नाम दे दे और पूछ दे कि ये किसकी बुक है या किसकी ऑडियो बुक है ये. और ऐसे भी आ सकता है कि उनकी फर्स्ट ऑडियो बुक का नाम क्या है. तो सुधा मूर्ति की फर्स्ट ऑडियो बुक, अमित सेज ऑप्शन डी. Balram, I can just help you with the stuff which I am doing right now. You can say Rahul, I do not use the app. Pranjal, Yadvendra, Rakesh, Faizan. Okay, so we have answers for option D on a major side. That is right. How the Onion Got Its Layers. ये बुक सुधा मूर्ति ने रिलीज करी है, उनकी फर्स्ट ऑडियो बुक है.
तो अगर ये पूछते हैं कि हाउ द अनियंस गॉट इट्स लेयर्स बुक किसकी है, तो सुधा मूर्ति की है, और उनकी पहली ऑडियो बुक का नाम क्या है, तो हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, ऑप्शन बी. Now, which country has begun testing for its digital currency to move forward with its plan of rolling out a virtual money payment system? किस देश ने वर्चुअल मनी भुगतान प्रणाली को चालू करने के लिए, अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू कर दिया है? कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली वर्चुअल मनी पेमेंट शुरू कर दिया है या उसकी टेस्टिंग फेज शुरू कर दिया गया है? कौन से देश ने ये वर्चुअल मनी पेमेंट शुरू किया है? और सिंस आप लोग फेसबुक यूज कर ही रहे हैं, तो फेसबुक का वर्चुअल मनी कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्चुअल मनी ऑफ फेसबुक? एंड कौन से कंट्री ने ये वर्चुअल करेंसी की टेस्टिंग शुरू की है? सिद्धू, यज्वेंद्र, बलराम, आलोक, देवेंदु, सक्सेना, अनु, राकेश. Quick answers. Sara, Baroda. Okay, so we have answers for option A, option B, option C. A confusion going on over here. Well, the right answer is China, option C. Recently, चाइना ने ये वर्चुअल मनी पेमेंट सिस्टम की टेस्टिंग शुरू की है. नाउ फेसबुक की वर्चुअल मनी का नाम क्या है? इट वाज लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ आई गेस सितंबर अक्टूबर के अराउंड ये लॉन्च किया था, एंड द नेम इज लिब्रा. लिब्रा नाम का ये फेसबुक ने वर्चुअल मनी लॉन्च करी, और उसके बाद चाइना ने भी अब इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है, जल्दी ये भी लॉन्च कर सकता है. Which platform is all set to roll out COVID-19 symptom tracking survey globally to identify potential hotspots? संभावित हॉटस्पॉट को पहचान करने के लिए विश्व स्तर पर कोविड-19 लक्षण ट्रैकिंग सर्वेक्षण को लागू करने के लिए कौन सा मंच तैयार है? पंकज, दैट इज लिब्रा इज द वर्चुअल मनी. जैसे बिटकॉइन है ऐसे लिब्रा है, पर वो फेसबुक के लिए है, फेसबुक यूजर्स के लिए. ये अभी होल्ड कर रखा है, डेफिनेटली अभी सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, इट हैज नॉट बीन लॉन्च्ड वर्ल्ड वाइड. दिनेश, लिब्रा इज अ क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल मनी जिसे कहते हैं, जो फेसबुक ने लॉन्च कर लिया. सुमित, अरविंद, इम्तियाज, राहुल, सत्यम, Sunny. Okay, so we have answers for option A, option B. Twitter और Facebook के बीच में a confusion is going on. Well, the right answer for this question is Facebook. Facebook ने एक ग्लोबल सर्वे शुरू किया है पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. ट्रायल अभी यूएसए में रन किया था, उसके बाद अभी वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया है. Who has been appointed as secretary to the President Ram Nath Kovind? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. So, इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी के फॉर्म में किसे अपॉइंट किया गया है? सोनी, सुमित, सूरज, आकाश. Okay, so we have a few answers going with option A, Kapil Dev Tripathi. That is right. Kapil Dev Tripathi को अपॉइंट किया गया है as a secretary to the President Ram Nath Kovind.
Over which river has BRO constructed a bridge in a record span of 27 days? 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर BRO ने एक पुल का निर्माण किया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और BRO इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने 27 दिन में एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है और वो कौन से स्टेट में बनाया गया है? अंकित, अरविंद, सुमित, सोनी, सरफराज, कम ऑन क्विकली, काव्यानंद, आलोक, Manjula, Prabhat. Okay, so we have a few answers going with option A and D. Well, the right answer is Subhansiri, option D. सुबनसिरी नाम की रिवर जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये जो ब्रिज है ये अरुणाचल में बनाया गया है ओवर द रिवर सुबनसिरी इन अ रिकॉर्ड स्पैन ऑफ 27 डेज, और ये किसके लिए है? टू enhance the connectivity of the state. Which state government has announced free online medical consultation to sick people at their residence through e-संजीवनी OPD? किस राज्य सरकार ने ई-संजीवनी OPD के माध्यम से अपने आवास पर बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की घोषणा की है? कौन सा राज्य है जिसने ई-संजीवनी OPD के माध्यम से अपने आवास पर बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श दिलवाने की घोषणा की है? Free online medical consultation to sick people at their residence through e-संजीवनी OPD. राहुल, मजुला, अरविंद, Anjula, Sarfraz, Pankaj, Soni. We have so many viewers and all of them are dormant. How come? Pranjal. Okay, so we have answers for Himachal Pradesh. That is right. हिमाचल प्रदेश ने e-संजीवनी OPD नाम की ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन शुरू किया है, जिसके अंदर दे जस्ट रिक्वायर लैपटॉप एंड अभी मोबाइल सर्विस लॉन्च नहीं करी है, वेब सर्विस है, तो यू रिक्वायर डेस्कटॉप और लैपटॉप एंड उसके थ्रू दे कैन गेट फ्री कंसल्टेशन विदाउट कमिंग टू द हॉस्पिटल अंटिल एंड अनलेस इमरजेंसी ना हो. नाउ वी हैव the last year papers के कुछ क्वेश्चन देखते हैं. ऑल्दो इस बार we have CGL, I guess इस बार CGL लिया है. We are completed CPU and we are on to CGL now. For those who are new viewers, Instagram and Telegram ID for any sort of updates regarding my videos, you can follow me there. And now we come to the first question. Name the media company that purchased the legendary studio of 21st Century Fox. उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21वीं सदी के सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को खरीदा है. ये CGL जो अभी मार्च में हुआ था उसके क्वेश्चन हैं. These questions are of the March month CGL, यानी CGL 19. So who has purchased this 21st Century Fox studio? इतने कार्टून्स देखे हैं 21st Century Fox studio में बने हुए. You should have kept a track on the acquisitions as well. We can do such an. Okay, so we have answers for Time Warner and some with option D. The right answer is option D, Disney. Disney ने खरीदा है 21st Century Fox. Next question. Veteran freedom fighter, social reformer and feminist Savitribai Phule hailed from which of the following states of India? This was an indirect current question in the paper. वयोवृद्धि स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्न में से किस राज्य से हैं?
Savitribai Phule is from which state of India? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इम्तियाज, अभिषेक, पायल, Sumit. Okay, so we have a few answers. Ishfaq. Okay, the answer for this is Maharashtra, option C. So majorly all those are going with the Maharashtra. That is right. Maharashtra se the Savitribai Phule, the first female teacher and feminist social reformer as well as a freedom fighter. Which of these institutions fixes the repo rate and reverse repo rate in India? और करंट रेट्स क्या हैं? तो इनमें से कौन सी संस्थान भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट फिक्स करती है और करंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या है? करंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. राकेश, सूरज, राहुल. इसका आंसर सभी को पता होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करती है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड आंसर. करंटली ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों रिड्यूस की गई हैं. रेपो रेट करंटली इज 4.40, रिवर्स रेपो रेट इज 3.75. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबैंडन्ड फॉर नियरली 600 years? लगभग 600 वर्षों के लिए त्याग दिए जाने के बाद सांची की खोज किस वर्ष में हुई थी? 3.75 is the reverse repo rate. Repo rate is 4.0. That's right. Suraj, error in the calculation. Anjali, yes, that's right. Sarfraz, right. Rohit, you didn't mention. किसका mention कर रहे हो? So सांची को किस वर्ष में ढूंढा गया था? After an approximately abandonment of 600 years. Okay, answers quick. Vikas. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली चेक्स ऑन दी फाइनेंसेस ऑफ इंडिया एज अ होल. इंडियन अकाउंट, इंडिया का जो अकाउंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट, वो मैनेज करना, उनके इन्वेस्टमेंट्स देखना एंड फर्दर पॉलिसीज बनाना विच विल बी इम्पोर्टेंट फॉर दी कंट्री. उनके लिए इम्पोर्टेंट है. प्लस 1 रुपी का नोट का सिग्नेचर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस. Okay, answer for this question 18 is the right answer, option B. So those who went with option A and C are wrong. Option B 1818 में this Sanchi was discovered. As of February 2020, who is the president of Sri Lanka? Yeah, basically fiscal policies and management of the account. फरवरी 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? एज ऑफ February 2020, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? रेफरेंस दिया है क्योंकि री इलेक्शन अनाउंस हो गया था मार्च में एंड अब वो पोस्टपोन हो गया. अप्रैल में री इलेक्शन होने वाले थे, वो पोस्टपोन हो गए हैं. सो श्रीलंका इज गोइंग ऑन डिफरेंट मैच, अलग ही मैच चल रहा है वहां पे. सो रेफरेंस ऑफ February 2020 इज गिवन कि February 2020 में प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन थे? Vijay, Sumit, Rakesh, Rahul. Okay, so we have a few answers with option B, Gotabaya Rajapaksa, and that is right. Gotabaya Rajapaksa is the president. Maithripali Rajapaksa ji, bilkul sahi. Coming to the 6th question.
World Food Program is the food assistance branch of United Nations. Where is it headquartered? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी क्राइसिस हिट एरियाज है वहां पे खाना पहुंचाना, एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम फूड क्राइसिस, पॉवर्टी की वजह से, फूड क्राइसिस की वजह से, या कोई भी एपिडेमिक आ जाता है वहां पे कुछ क्राइसिस चल रहा है एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, तो वो सप्लाई के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डज इट्स वर्क। यूनाइटेड नेशंस का ब्रांच है। ये कहाँ पे है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे हेडक्वार्टर है वहीं पे WFP का हेडक्वार्टर है। एंड कृष्ण, दीक्षा, दिवेंदु, सुमित, Argyadeep and all of you are majorly all of you are right, that is Rome. रोम इटली के अंदर हेडक्वार्टर्स है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? फूड मीन्स इटली, यस यू कैन रिमेंबर दैट वेज। इस FAO का भी हेडक्वार्टर वही है राहुल, दैट्स राइट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को ने मिलके ही ये WFP बनाया था। इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है, या विच ऑफ द बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सुमित, ईशांत, अभिषेक, रवि, जुबैर, इनमें से सबसे छोटी बोन कौन सी है? वेल, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमर है एंड वो ह्यूमन ईयर में नहीं है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर, द थाई बोन जिसे कहते हैं, और ये लॉन्गेस्ट बोन है, ऑब्वियसली ईयर में नहीं होगी, इट इज द थाई बोन। नाउ शॉर्टेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेप्स है, विच इज ऑप्शन बी। स्टेप्स इज द शॉर्टेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये ईयर में है। ईयर के अंदर बेसिकली 3 बोन्स होती है, इनका स्टेप्स एंड मैलियस। इनमें से सबसे छोटी है स्टेप्स। सो नाउ इधर आपको पता लग गया इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट बोन, शॉर्टेस्ट बोन एंड ईयर बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following played the leading lady in the film Mission Mangal that tells the dramatic true story of the women behind India's first mission to Mars? Sachin, yes, famous is the part of leg, stage is smallest. Subhashri, that's right. Now, निम्नलिखित में से किसने फिल्म मिशन मंगल में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन के पीछे महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी बताती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिर से। लीड फीमेल लेडी, आई एम सॉरी, लीडिंग लेडी या फीमेल कैरेक्टर ऑफ मिशन मंगल? सुमित, अमन, Rajesh. Well, slow answers से मैं क्या समझूं? Rahul, Yadvendra, well, the answer is Vidya Balan. That's right, option B. Vidya Balan was the lead lady in Mission Mangal. As of January 2020, Shri Bhupesh Baghel is the Chief Minister of which of the following state? जनवरी 2020 के अंदर श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और बाकी के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन हैं ये भी बता दो। सो अ क्विक नोट ऑन श्री भूपेश बघेल इज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, एंड बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर कौन है? सौरभ, सज्जन, सागर, टोनी, महेश, मॉर्निंग, निखिल, राहुल,
Okay, so we have answers for option B, option C. Well, the right answer of this question goes with option C. That's right. छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल. Now, other states: Haryana Manohar Lal Khattar, Ishwar, that is right. Odisha Naveen Patnaik, that is also right. Hemant Soren Jharkhand, Nishant, that is right. So all the three have also been told. All of you are right on that. Moving forward, Arku Valley, a tourist resort, is located near which of these cities in South India? अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल है. ये दक्षिण भारत के किस शहर के पास स्थित है? Araku Valley is a tourist resort located near which of the following cities of South India? अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल है जो दक्षिण भारत के किस शहर के पास स्थित है? त्रिभुवन, सोनी, yes, that's right. राहुल, दिवेंदु, राइट. सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाले हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक बिकॉज ऑफ वेरी फ्रीक्वेंट स्कीम्स कमिंग आउट इन ओडिशा. ओडिशा में इतनी स्कीम्स आती हैं, इतना प्रोग्रेस के अप्रोचेस ट्राई किए जा रहे हैं ओडिशा में, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन न्यूज. यस, पटनायक जी हैव आल्सो रिसीव्ड पीटा अवार्ड. कुछ दिन पहले ही बात हुई थी इस बारे में भी. Naveen Patnaik ji was a recipient of award by PETA. Now, answer for this question: Visakhapatnam, option C. Araku Valley is a tourist resort in Visakhapatnam. Next, uniform GST rate that has been fixed up for lottery prizes by GST Council. GST परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए तय की गई समान GST दर क्या है? What is the uniform GST rate fixed up for lottery prices by GST Council? नरेंद्र, सुचेश, कोई कितना GST लगता है लॉटरी प्राइसेस पे? Okay, so answers coming up for option B and C. The right one is option C. 28% is the GST rate for lottery prices by GST Council. Next question. First and currently the only batsman to score double hundreds in 4 consecutive test series. लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? First and the only batsman as of now to score double hundred in 4 consecutive test series. प्रीति, परमानंद, रवि, Nishant, Aman, Sajjan. Okay, so we have a few answers coming up. Well, the right answer is option A, Virat Kohli. Virat Kohli is the first and currently the only batsman for scoring double hundred in 4 consecutive test series. Next, more common name for solid carbon dioxide. ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? What is the common name for solid carbon dioxide? Solid carbon dioxide का common name क्या है? शिवम, अजय, अभिषेक, प्रांजल, Rahul, Rohit, Nitish. Okay, so we have a few answers. Mohtak, Raja, Vikas, dry ice. That is right. Solid carbon dioxide को dry ice भी कहते हैं. Now,
from India who inaugurated the Kartarpur corridor and flagged off the first set of pilgrims to the final resting place of Sikhism founder Guru Nanak Dev Ji. भारत से किसने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिखों के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल पर तीर्थ यात्रियों के पहले सेट को झंडी दिखाकर रवाना किया? अंजलि, मोहित, नीरज, दिव्येंदु, प्रदीप। Mahavir, Saurabh, Satish. Okay, so we have a few answers. Option B, Narendra Modi ji is the right one. He flagged off the first set of pilgrims to the Kartarpur corridor. The ruins of the ancient city of Hampi, capital of Vijayanagara, is located in which present-day Indian state? प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर विजयनगर की राजधानी वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित है? और हम्पी इज द मोटिफ ऑन विच न्यू नोट ऑफ इंडियन रूपी? दोनों का आंसर करना है एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हम्पी जो विजयनगर की कैपिटल थी वो प्रेजेंटली किस इंडियन स्टेट में है और इंडियन रूपी, कौन से इंडियन रूपी का मोटिफ है हम्पी? हम्पी